Hi students, comes to the new topic matrices. Actually, it is combined topic of matrices and determinants. Okay, this is also it takes good play in mathematics. A good play क्या है? This is also good role. It maintains good role in the maths, especially matrices are. So we comes to what our topic matrices. It is also very important for our JEE and mains and advanced and also CET. Okay. So first of all, actually, what is a matrix? We see about the definition of matrix. You know the numbers? Yeah. क्या सर हमको नंबर मालूम नहीं क्या है मालूम है आपको कौन से नंबर्स मालूम है रियल नंबर्स मालूम है व्हाट आर द रियल नंबर्स वी हैव रेशनल्स irrationals naturals okay na natural numbers okay set of all numbers generally you know that it is a real number set okay if any numbers real numbers if you arranged in a what in any one of the rectangular form बोले तो क्या है for example 1 3 5 7 2 4 3 6 it is looking like a rectangle what is the meaning what we are arranging in a horizontal rows horizontal line के ऊपर अपन अप्लाई कर रहे हैं horizontal line के ऊपर क्या कर रहे हैं नंबर्स ले रहे हैं अपन और ये vertical line के ऊपर है ना तो this arrangement ये जो rectangular form में arrangement कर रहे हैं by using this closed bracket okay you have to close then this arrangement is said to be the what matrix means and numbers and the real numbers are real numbers a biggest number system hai that is complex numbers okay it is also there in our 11th okay 11th may have complex number system so real numbers are complex numbers you arranged in what either in a horizontal line or in a vertical line okay or in a rectangular form now this form is called as a matrix so generally these matrices are denoted by capital letters like A ले लो या B capital B या capital P capital Q okay so this is a matrix yes so इसमें ये जो matrix में जो horizontal line के ऊपर जो है now it is called as row means rows first row it is now this is called as another row okay what are the rows are the horizontal line के ऊपर जो rows what we have numbers जो है now these horizontal line is called as a row first row and it is what we have called as a second rows it is similarly ये जो vertical line के ऊपर जो लिए now this is called as a column इसको अपन क्या बोलते हैं column बोलते हैं what we have to called as column now it is a second column it is third column it is fourth column okay so this is the general definition of matrix so what is the matrix definition is a real or complex numbers देखेंगे क्या देखिए एक बार what we have general definition of matrix is we have to take like this a real or complex numbers a real or complex numbers okay arranged where we have to arranged in rectangular form arranged in rectangular form okay arranged in rectangular form is called a matrix उसको अपन क्या बोलते हैं is called a matrix so generally the matrices are denoted by capital letters like A B C और ये जो अरेंजमेंट जो लिए अपन उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो ले रहे ना हॉरिजॉन्टल लाइंस दे कॉल्ड एज रोस एंड वर्टिकल लाइंस जो है दे कॉल्ड एज व्हाट कॉलम्स उसको क्या बोलते हैं अपन कॉलम्स बोलते हैं इट इज द फर्स्ट इट इज सेकंड इट इज थर्ड एंड इट इज फोर्थ कॉलम ओके सो दिस इज सो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट वी सी अबाउट व्हाट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर what is the order of a matrix okay suppose if you take any one of the matrices A is equal to what I'm taking here 1 3 5 7 9 2 4 6 2 0 1 2 3 1 5 कुछ तो मैट्रिक्स ले लिया
ये देखो एक बार मैट्रिक्स है या नहीं, कैसे बोल सकते हैं अपन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो ना इसको ऐसा लाइन फॉर्म करो, वी आर गेटिंग ए रेक्टेंगल। बोले तो स्क्वायर नहीं होता क्या सर, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर तो होता है। ओके, स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल वी हैव। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव हियर इट इज, दिस इज हाउ मेनी रोज आर देयर इन दिस, कितने रोज है पूरा, 1 2 3 रोज आर देयर। हाउ मेनी रोज, 3 rows, and columns आप observe करो, 1 2 3 4 5 columns are there. So what is the order of this matrix is we denoted by 3 not into, it is called as by 3 by 5। क्या बोलते हैं उसको अपन, 3 by 5 भी उसका मैट्रिक्स ऑर्डर है। बोलो तो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट 3 रिप्रेजेंट्स व्हाट, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, एंड नेक्स्ट 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या करता है अपने को, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। For example, you see there here B matrix, what I'm taking here 2 3 1 5. So it is a, what do you have, also a rectangle form we are taking. So 2 rows and how many columns we have, 2 columns, 2 rows, number of rows कितना है 1 2 और number of columns कितना है, so 2 by 2 बोलते हैं। So generally what we have to say, the matrices are generally, okay, मैट्रिसेस वी आर टेकिंग लाइक दिस। कोई भी जनरल मैट्रिक्स लेना है तो आप कैसा लेना है, ओके तो ऑलवेज अपन क्या ले रहे हैं, एग्जांपल्स ले रहे सर अपन, ऑलवेज मैं क्या ले रहा हूँ, कुछ तो नंबर्स लेके आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल c इज इक्वल टू 2 बोल के दिया मैं, एनीबॉडी व्हाट इज ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या है, हाउ मेनी रोज 1 रो, हाउ मेनी कॉलम्स 1 कॉलम 1 रो, ओके नेक्स्ट 1 कॉलम, ओके तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 by 1, उसका ऑर्डर क्या होता है 1 by 1 होता है। ओके सो मैं क्या बोल रहा था इधर, इफ सपोज एनी वन ऑफ द जनरल मैट्रिक्स लेना है लाइक A11 A12 जनरल एलिमेंट्स A13, ओके ऐसा मैं क्या ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, A1 m बोल के ले रहा हूँ, m के जगह कॉलम्स n लेना है मेरे को तो 1n बोल के ले लो। ये क्या है सर, ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स नहीं है सर, जनरली आप जो एलिमेंट्स ले रहे हैं ना वो एलिमेंट्स को मैं जनरली ले रहा हूं मैं। A11 बोले तो इसका मीनिंग क्या है, ये फर्स्ट वन रिप्रेजेंट रो, सेकेंड वन रिप्रेजेंट्स इट्स कॉलम, ओके तो ये 11 बोले तो ये फर्स्ट रो, नेक्स्ट वन रिप्रेजेंट्स इट्स फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, व्हाट इज दैट A11। फॉर एग्जांपल A13 है तो क्या होता है, इट इज ये 1 रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये 1 3 क्या है फर्स्ट रो एंड 3 रिप्रेजेंट्स व्हाट, थर्ड कॉलम एलिमेंट, बाद में इससे यूज होता है अपने को। ओके व्हाट एवर द लास्ट A1n, इट इज द फर्स्ट रो एंड nth कॉलम एलिमेंट। ओके सो सिमिलरली A21 A22 A23 so on A2n, okay next A31 A32 A33 so on A3n, next we continue AM1 AM2 AM3 and so on AMN. This is, so generally the matrices we denoted by like this, these numbers, these what do you have, letters like A11 A12 A13 general matrices, okay तो इसमें आप फॉर एग्जांपल A32 लिया मैं, आप देख के बोल सकते हैं या A32 बोले तो ही बोल सकते हैं आप, क्या बोल के, वो पर्टिकुलर एलिमेंट थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, करेक्ट है क्या, देखो एक बार 1 2 3 थर्ड रो में है, नेक्स्ट 1 2 सेकंड कॉलम में है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन इधर ये रिप्रेजेंट करते हैं, मीनिंग व्हाट, फर्स्ट ऑलवेज रोज, नेक्स्ट ऑलवेज कॉलम्स। अब ये बोलो व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, टोटल मैट्रिक का ऑर्डर क्या है उसको देखते हुए, एग्जांपल्स ऑलरेडी दिया पहले मैं, तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, इसका डेफिनेशन कर रहे हैं अपन जनरल मैट्रिक्स का, व्हाट इज द ऑर्डर, तो हाउ मेनी रोज, फर्स्ट एलिमेंट 1 रिप्रेजेंट्स 1 रो, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, और कंटिन्यू कर रहे सर अपन ऐसी कंटिन्यू करते करते कहां तक आ गए अपन, m तक आ गए, बोले तो हाउ मेनी रोज इन दिस, m रोज इज इन दिस, m रोज, ओके ना, m रोज आर देयर। नेक्स्ट व्हाट यू हैव, बाय बोलते हैं, डोंट से इनटू या मल्टीप्लाइड या कुछ भी मत बोलो, उसको क्या पढ़ना है, m बाय, व्हाट इज द कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड एलिमेंट 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम
What about n represents nth column? So this is the highest, m by n. और इसको अपन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. बोले तो कैसा? ये ith row jth column of what is the order is m by n. What is this inside ij represents inside row and column को represent करता है. Okay, so what about the I represents? I is the row. कौन से रो? फर्स्ट रो से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड रो, थर्ड रो, कहाँ तक? यंथ रो. बोले तो आई जो है 1 से लेके यम के बीच में है. करेक्ट है क्या? आई वैल्यू कहाँ से? 1 से स्टार्ट हो गया 2 3 यम तक. हाँ, जे अभी आप बोल सकते हैं जे. जे क्या है? कॉलम. कॉलम क्या हो रहा है? 1 2 3 व्हाट यू हैव n तक. So J lies between 1 to n. Okay, this is the short form sir. इतना बड़ा मैट्रिसेस लिखने का जरूरत नहीं है आपको. आप क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्टली आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं. ओके, तो ऐसा भी आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये आई जे ऑफ m by n. बाहर m by n क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है. अंदर आई जे क्या है? अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है. Okay, so this is the general definition of a matrix. तो अभी तक अपन जो लिए सो मैट्रिक्स का डेफिनेशन से अपन क्या बोल सकते हैं? The real numbers या complex numbers we arranged in a rectangular array means rectangular form. Okay, now that form is said to be the what? A matrix. Okay ना? तो उसका ऑर्डर क्या होता है? You know, this is. Next we see about what? The types of matrices. What do you have? Types means ये जो matrices जो है types लेंगे अपन इसका. So one by one we see about the types of matrices. We have so many types are there in this. तो अपन वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल के साथ अपन ले सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज वी हैव रो मैट्रिक्स. आप ऐसा बोलने से ही आपको मालूम हो रहा है इट है कंटेन वन रो, है ना? उसके मैट्रिक्स का नाम ही अपन क्या बोल रहे हैं? रो मैट्रिक्स बोल रहे हैं. तो उसका मीनिंग क्या है? इट कंटेन्स ओनली वन सिंगल रो. फॉर एग्जांपल ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. वन सिंगल रो आई एम टेकिंग. इट इज अ रो मैट्रिक्स. Only one row it contains. Okay, so what is the order of this matrix? Order क्या है? क्या होता है? It is the first row. Okay, next column 1 2 3 4 5. It is called as a row matrix. Next, second one is we have the column matrix. What is the second one is we have a column. ये तो simple मालूम हो रहा है आपको. कैसा? We are taking one single column like 1 2 3 4. One single column. डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ सर, आपको आइडिया आ रहा है. आप टेक्स्ट बुक से आप ले सकते हैं डेफिनेशन. ओके, तो रो मैट्रिक्स बोले तो क्या है? इट कंटेन्स ओनली वन सिंगल रो. कॉलम मैट्रिक्स मींस इट कंटेन्स ओनली वन सिंगल कॉलम. एनी हाउ व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज फर्स्ट क्या चेक करते हैं अपन? रो चेक करते हैं. 1 2 3 4 रोज. करेक्ट है क्या? How many columns? One column. So 4 by 1. That matrix order is. Next, अभी तक अपन क्या बोल रहे थे? Matrix will be in the form of rectangular बोल रहे थे. Rectangular means like this. ये फॉर्म में रहना है. अब उसको कट कर शॉर्ट करेंगे तो it become the square. तो फिर square matrix rectangular is also become the square. कब होता है मालूम है क्या? Now see here. The third type is square matrix. What is the third type is square matrix. So whatever the square matrix is, इसमें if suppose any one of the matrix you take like this 1 3 4 5. Now you check out how many rows? 2 rows. Order निकालो. How many columns? 2 columns. Number of rows 2. Number of columns 2. So क्या बोलते हैं अपन? Number of rows. Okay, number of rows is equal to number of columns. So then that matrix are said to be the what? What you have to say? वो जो matrix को अपन क्या बोलते हैं? Square matrix we are saying. Square. Rows and columns are same. 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4. Means 3 by 3 बोले तो 3 rows. फिर
3 columns ले सकते हैं ना अपन. That is, next comes to what? Another one is अपन already लिए सो है. What do we have? Rectangular matrix. What is that? A rectangular matrix. So ये जो rectangular matrix में क्या कर रहे हैं अपन? If number of rows not equal to number of columns, not equal to number of columns, number of rows is not equal to number of columns. Not equal बोले तो मालूम है आपको. Suppose एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, जब से ये ले रहा हूँ बोल के आप ऐसा मत सोचो कि मैट्रिक्स ये से करते हैं. कुछ भी अल्फाबेटिक वैल्यू ले सकते हैं अपन, है ना. बट फर्स्ट लेटर ये अपने को फ्री में मिलता है ना, तो वही ले रहे हैं अपन ये बोल के. तो 1 3 4 5 7 2 0 1 3 2. चलो फाइंड आउट व्हाट अबाउट द ऑर्डर. इसका ऑर्डर क्या होता है? हाउ मेनी रोज? इट्स अ 2 rows. हाउ मेनी कॉलम्स? 1 2 3 4 5. So now this type of matrices means जो स्क्वायर नहीं होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है ना. जो स्क्वायर जो नहीं होता है, now they called as rectangular matrix. Next, और एक क्या है? Now what we have? We know about one note. What about the note is a principal diagonal elements. Principal diagonal elements. इसके बारे में मालूम होना चाहिए सर. What is the principal? What are the principal diagonal elements? So generally a square matrix ले लो आप. 1 3 4 2 6 7 1 0 2. ये क्या है? What about this matrix is? इसमें अभी तक जो टाइप्स हुआ है 4 टाइप्स, उसमें कौन सा होता है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड टाइप. देखो what is the order here? First, second, third row. नेक्स्ट थर्ड कॉलम, है ना. रो 3 एंड कॉलम 3. सो इसमें ये स्क्वायर है, ये इट फॉर्म्स ए स्क्वायर. तो डायगोनल रहता है इसका 1 6 2 इज द डायगोनल. इधर से देखे तो 4 6 1 डायगोनल. करेक्ट है क्या? ये जो फर्स्ट एलिमेंट से अपन जो डायगोनल आप फॉर्म कर रहे 1 6 2, दिस इज कॉल्ड एज ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं उसको. ध्यान में रखो. What do you have? तो वो भी किसमें? Not in. इसमें तो नहीं मिलता, स्क्वायर ही नहीं मिलता पूरा, है ना उधर रिमेनिंग. ओके, उसमें नहीं मिलता अपने को. किसमें मिलता है? स्क्वायर मैट्रिसेस में जो फर्स्ट एलिमेंट से जो डायगोनल फॉर्म हो रहा है वो डायगोनल का एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं. ओके, क्योंकि अभी क्या करने वाले, नेक्स्ट वी सी अबाउट What we have types of matrices में ये diagonal के ऊपर डिपेंड होते हुए ले रहे अपन. ओके, डायगोनल्स जो है ना उसके ऊपर डिपेंड होते हुए और कुछ टाइप्स निकाल रहे अपन. कैसा नो सिया क्या? सो उसमें अभी तक क्या लिए? 4 लिए थे सर. रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नाउ कम्स टू व्हाट द फिफ्थ वन इज. अभी तो लिए ना डायगोनल बोल के, तो डायगोनल ही ले रहा हूं मैं. डायगोनल मैट्रिक्स. सो व्हाट अबाउट द डायगोनल मैट्रिक्स? मींस द प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स. कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, फॉर एग्जांपल ये यस. Okay, the principal diagonal elements 1 3 5, 3 by 3 मैट्रिक्स निकाल रहा हूं मैं. ओके, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये छोड़ के बाकी सब आप एलिमेंट्स जो ले रहे ये मैट्रिक्स में, नाउ दैट एलिमेंट शुड बी 0. क्या होना चाहिए? जीरोस. बोले तो क्या है? एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स PDE मालूम है ना, इससे पहले ये थे अपन वो पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दीस 3 छोड़ के. बिल्कुल 3 by 3 है ना ये मैट्रिक्स ऑर्डर. ये ऑर्डर कितना है? 3 रोज और 3 कॉलम्स. ओके, 3 by 3 है तो इसीलिए अपन ये 3 by 3 3 एलिमेंट्स आ रहा है. 4 by 4 लिए तो 4 एलिमेंट्स आते हैं प्रिंसिपल डायगोनल. 2 by 2 लिए तो 2 एलिमेंट्स आते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. तो except these principal diagonal elements, remaining all are zeros. All are zeros.
Okay, now that type of matrices are said to be the what? A diagonal matrix. Okay, so ये जो diagonal matrix जो है इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन? diagonal of, क्या लिखना है? 1 3 5. Don't take any commas, any full stops between them. ओके ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 1 3 5. शॉर्ट में लिखते हैं इसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स को. ओके, so this is about the diagonal matrix. Next comes to another one is sixth one, scalar matrix. टाइप्स चल रहा है सर अपना, खाली सिंपल याद रखने का बस. ओके, इसके ऊपर ही प्रॉब्लम्स रहते हैं अपने को. ओके, मैट्रिक्स देख के कौन सा टाइप है निकालना पड़ता है अपने को. ओके, सो स्केलर मैट्रिक्स. So scalar matrix is depend upon the diagonal matrix. कैसा? ये जो diagonal matrix क्या बोल रहे हैं? Principal diagonal element छोड़ के बाकी सब क्या होता है? जीरो होता है. Means principal diagonal elements कुछ भी हो सकता है, any numbers. Okay, but in scalar matrices the principal diagonal element should be same. समझ नहीं? Principal diagonal element should be same and the remaining elements are zeros. Means diagonal matrix को अपन क्या बोलते हैं? ये diagonally ही scalar हो रहा है. करेक्ट है क्या? क्योंकि diagonal में different elements है. अभी डायगोनल एलिमेंट्स में अपन क्या ले रहे हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के प्लेस में सेम एलिमेंट्स लिए तो वो मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आप ऑब्जर्व करो, दे आर सेम. इसको कैसा लिखते हैं मैट्रिक्स? आपको मालूम है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 5 5 5. एक्चुअली ये डायगोनल ही है. फर्स्ट पॉइंट ये डायगोनल है, क्योंकि ये एलिमेंट्स के बारे में अपन कुछ नहीं बोले. डायगोनल में क्या बोल रहे थे? ये एलिमेंट्स रहना है, बाकी सब जीरो रहना है. तो ये ऑलरेडी डायगोनल है. बट डायगोनल में एक कंडीशन है, क्या है? ऑल द एलिमेंट्स आर सेम. द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर सेम. देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी द व्हाट? ए स्केलर मैट्रिक्स. अंडरस्टैंडिंग ना? दैट इज 2 2 2 स्केलर, 7 7 7, 100 100 100, कुछ भी ले लो. दैट इज कॉल्ड एज ए स्केलर मैट्रिक्स. Next we comes to what? The seventh one is, next one we comes to an unit matrix. Unit matrix are also called as identity matrix. Identity matrix. ये जो identity matrix में generally unit or identity generally denoted by capital I. First point. ओके, ये यूनिट मैट्रिक्स जो है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है सर. ये भी डायगोनल है और ये भी स्केलर है. ए डायगोनल आल्सो यूनिट, ए स्केलर आल्सो यूनिट. कब मालूम है क्या? ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1 1 1. वो क्या होना चाहिए? 1 1 1 होना चाहिए. दिस इज समझ रहा नहीं? डिफरेंट एलिमेंट्स डायगोनल, same elements scalar, same elements but equal to 1. what? Unit or identity matrix. इसका भी ऑर्डर क्या है? 3 by 3. सो इसको शॉर्ट में I3 लिखते हैं अपन, I3. ओके, जब से 3 by 3 ले रहे हैं, क्योंकि सर अपन 2 by 2 लेंगे क्या? I2 2 by 2 कैसा लेते हैं? 2 by 2 मैट्रिक्स 1 0 0 1. इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स. व्हाट अबाउट दिस? I2 identity or unit matrix it is. Okay, so this is depend upon the what? The diagonal matrix के ऊपर है. So how many are over? 7 matrices हो गए सर अभी तक. Different matrices. आप एक बार रिपीट करके एक बार देख सकते हैं फिर क्या क्या है. मैं जरा फास्ट गए तो भी आप रिपीट कर सकते हैं क्योंकि वीडियो है ये, है ना? चलता है. So आप उसको फिर और एक बार देखो, टेस्ट क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों तीनों में, डायगोनल में, स्केलर में और आइडेंटिटी में, क्योंकि और एक और आने वाला है अपने को. सो कम्स टू नेक्स्ट, 8th वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. upper triangular matrix. Okay, so what is upper triangular matrix means? You see there here
सपोज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स लिया मैं, इसके ऊपर जो पार्ट है ना वो अपर पार्ट बोलते हैं, जो नीचे जो है लोअर पार्ट बोलते हैं अपन। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वो भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। पूरा टोटल मैट्रिसेस मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिसेस के ऊपर ही चलता है। ओके तो अब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी तक अपन डायगोनल लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी जो अपर ट्रायंगुलर ले रहे हैं वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो व्हाट अबाउट द स्क्वायर मैट्रिक्स? ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले तो क्या है, उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर अपर वैल्यूज इज व्हाट ही हैव नॉन जीरोस। उसका मीनिंग क्या है, अपर पार्ट क्या होता है, ट्रायंगल फॉर्म करता है, एंड दिस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का बिलो वैल्यूज जो है 1 के नीचे आते हैं ना 0 0, और 2 के नीचे जो आता है 0 0। देखो एक बार, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, ये तो मालूम है आपको, है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है। तो उसका अपर पार्ट क्या होता है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है विथ नॉन जीरो एलिमेंट्स। और एक डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का बिलो वैल्यूज 0 है और ऊपर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है नंबर्स के साथ। नाउ दैट ट्रायंगल इज सेड टू बी द व्हाट, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके ना, सिंपल डेफिनेशन। तो एक अपर है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ में क्या रहता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ऐसा मत सोचो सर इसमें कोई भी एक वैल्यू भी 0 नहीं होना, क्या होता है, 0 होता है, वैसा कुछ नहीं है। इसको 0 ले लो, इसको 0 ले लो, बट कोई तो तीनों में ये एनी वन ऑफ द वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। आप ये तीनों 0 लेंगे तो क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है ना, उसका फिर वो क्या बनेगा, तीनों 0 हुए तो वो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, मालूम है ना, दैट इज। सो एनी वन, ये तीनों में कोई वन ऑफ द वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना, कोई भी एक वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू। नेक्स्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में, तो आपको आइडिया आ गया सर, आप ही बोल सकते हैं उसको देखते हुए, सर एक प्रिंसिपल डायगोनल ले लो बोलते हैं आप, चलो मैं ले रहा हूं एक प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। हाँ चलो, ट्रायंगल किधर फॉर्म होता है सर, बिलो फॉर्म होता है, लोअर ट्रायंगल है ना, लोअर जो पार्ट जो है इसमें ट्रायंगल फॉर्म होता है विथ नॉन जीरो एलिमेंट्स। कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट तो रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 लिया, इधर 3 लिया, इधर 0 लिया, 0 ले लो चलता है एक, बट तीनों भी 0 नहीं लेना चाहिए। बट कंडीशन क्या है, इसके ऊपर जो पार्ट है उसमें ऑल द एलिमेंट्स आर जीरोस। जरा ऑर्डर में लिखो, 3/3 है ना ये, 5 के बाद 0, 0 के बाद 7, दिस इज मेरा नहीं, दिस इज अबाउट लोअर ट्रायंगल। तो इसलिए अपने को माइंड में कैसा फिक्स करना है, अपर ट्रायंगल बोले तो अपर पार्ट में ट्रायंगल फॉर्म होता है विथ नॉन जीरो एलिमेंट, ओके ना। लोअर ट्रायंगल बोले तो लोअर पार्ट में ट्रायंगल फॉर्म होता है विथ नॉन जीरो एलिमेंट। बोले तो ऑपोजिट केस में पूरा जीरोस रहेगा, इधर भी ऑपोजिट केस में पूरा जीरोस रहेगा। ओके, नाउ वी कम्स टू व्हाट, अनदर वन इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। triangular matrix. So what about the triangular matrices? ये जो ट्रायंगल मैट्रिक्स बोले तो क्या है, इफ एनी वन ऑफ द मैट्रिक्स either it is upper या लोअर, कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे अपन, ये कोई भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो, नाउ इट इज कॉल्ड एज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। means the upper triangular matrix or lower triangular matrix is also called as a triangular matrix। बोले तो फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रायंगल, चलो ये ले रहे ना अपन, बार बार भी ले रहा हूं मैं, और 1 3 5 लिया सर, 1 3 5, ओके, तो इधर क्या ले रहा हूं मैं, 0 2 1, तो ऑटोमेटिकली ऊपर मेरे क्या लेना पड़ता है, 0 लेता है। एनीबॉडी व्हाट अबाउट दिस, अपर या लोअर, दिख रहा है ऊपर लोअर ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है विथ नॉन जीरो, तो इट इज लोअर triangle matrix। okay, now it is called as simply a triangle matrix। बोले तो lower triangle matrix and upper triangular matrices are also called as triangular matrices। सिंपल, इसको लोअर अपर ट्रायंगल बोल रहे हैं आप, बट ट्रायंगल भी बोलते हैं उसको, लोअर ट्रायंगल बोल रहे हैं तो ट्रायंगल भी बोलते हैं इसको। ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू व्हाट, अनदर वन इज null matrix and it is also called as zero matrix। null or zero matrix, okay, तो it is denoted by O, not zero, it is O, English letter O है, alphabetic letter O। इसमें क्या है, all the letters are, all the numbers are zeros, ये 2/2 है,
2 rows 2 columns, 3 by 3 ले लो, zeros, okay ना? So that is, so this is about thus what we have first types of matrices. इसके बाद क्या है, स्पेशल टाइप्स है अपने, वो स्पेशल टाइप्स क्या है अपन नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे अपन, ओके? सो अभी तक जो टाइप्स हुआ है एक बार चेक करो, एक मैट्रिसेस एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स फॉर्म करो वो टाइप्स के ऊपर, ओके? ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है आपका, राइट? थैंक यू।